75% people who are 40 years and above will lose the job. इतने जॉब्स क्रिएट हुए हैं वो स्टार्टअप इकोसिस्टम से सबसे ज़्यादा हुए हैं. We have reached to like around 15,000 IT community, and we have a vision of creating a network community of around 1 million company globally. जनरली भी 5 to 10 सेकेंड रिज्यूमे पे देते हैं लोग. उस पीरियड में like I was serving notice period. By the time I completed my notice period, me and my wife both were jobless. And currently, like we are hiring a lot of people on like Java, particularly Python, data science, data engineers, sales, recruitment also like we hire. आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को जो ये वीडियो देख रहे हैं? बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आए चले गए. आई गॉट इनटू टैलेंट एक्विजिशन एक्सीडेंटली. और आपका इंस्टा है तो आई थिंक इज AI बेस्ड टू. तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडिया बहुत ग्रो हो रहा है. वी आर वेरी प्राउड. नेक्स्ट 10 years, next 20 years are very promising. 65% of our population is capitalized नहीं है. That can be a burden also. There is a huge disconnect between industry and the education institutes. अभी भी women employment जो है ना, it's far lesser than like the mature economies. कोई भी जॉब सीकर अपना रिज्यूमे स्टैंड आउट कैसे करे? हेलो गाइस. हेलो सैयद सर, कैसे हैं आप? Hi Akash, I'm good. Thank you so much for inviting me here. Yes, great to have you here. My pleasure. So for our audience, why don't you first give us understanding? आप बताइए कि आपका जर्नी क्या रहा है. Please introduce yourself. Okay, so my name is Syed Farhan, and I'm a die-hard entrepreneur, and I had done couple of stints earlier also before starting this current venture on benchmark.com. तो ऑन बेंचमार्क जो है इट्स ए बेंच रिसोर्स शेयरिंग प्लेटफॉर्म वेयर वी हैव क्रिएटेड ए नेटवर्क कम्युनिटी ऑफ 15,000 IT companies to share their resources. So it's a part of a sharing economy which is considered to be the third biggest economic system change after capitalist and socialist economy. And the like examples of like Airbnb and Uber and Ola or all these examples. तो हम उसी concept पे जो है ना काम कर रहे हैं और how we can minimize like the hiring time. So we are reducing hiring time by 90%, working in collaboration mode, like where companies can share their resource, bench resources. So this is what we are doing and trying to make a mark in the industry. Great. Like मैं जान रहा हूँ आपने जो कंपनी चालू किया है. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस एज वेल. सो इट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री जो आप जिसमें काम कर रहे हो, एंड उसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे. सो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या इंस्पायर किया. व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर बिजनेस? आप पहले आपकी जर्नी में आप पहले जॉब भी कर रहे थे. यू हैव वर्कड इन द टैलेंट एक्विजिशन, राइट? फिर आपने वहाँ से चेंज करके बिजनेस स्टार्ट किया. तो क्या व्हाट इंस्पायर्ड? Actually, it was not like a one fine day kind of a thing. It was more of like organic. So when I passed out my engineering, like I am a BTech mechanical. So after that, like I came to Delhi to search for a job, and I was like appearing for a lot of interviews and all. तो वहाँ पर हम एक कंपनी से introduction हुए where like they offered me a job. They were providing solution for computer vision syndrome in early 2000 I'm talking about. So that was like they were actually having concept of providing the ergonomic solution. So ergonomy is like for audience is a science that increases the human efficiency. तो उसमें जो है ना computer vision syndrome and IT was like in the early stages of its boom. तो आई थॉट लाइक दिस इज़ अ न्यू थिंग, तो इसमें कुछ करना चाहिए. तो उसमें मैंने पहली कंपनी स्टार्ट करी इन अर्ली 2000 कंप्यूटर हाउ टू मिनिमाइज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एंड एज एन विजुअल एर्गोनॉमिक कंसल्टेंट. क्या होता है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम? क्या होता है हमारी? इज यूजुअली व्हाट हैपेंस कि व्हेन वी आर वर्किंग ऑन ए लाइक कंप्यूटर, तो लोगों को लगता है कि एक्चुअली इट्स लाइक एनी काइंड ऑफ रेज इज बीइंग कमिंग आउट ऑफ लाइक कंप्यूटर, बट एक्चुअली इज द फ्लिकर मिसमैच दैट causes द मोस्ट ऑफ द इफेक्ट, राइट? बिकॉज हमारी एक जो ट्यूबलाइट या फिर लाइट होती है उसकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है और जो मॉनिटर की होती है वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है. तो ऑप्टिकल नर्व्स दैट डिटेक्ट्स दैट एक्चुअली. तो आपने यूजुअली देखा होगा जब आप कैमरे पे टीवी में टीवी देखते हैं तो वो उसमें स्क्रीन रोल कर रही होती है.
अब नहीं होता क्योंकि एलईडी टीवीज़ एंड और आ गए हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था तो कैमरा डिटेक्ट कर लेता था, तो हम उसको मिनिमाइज़ करते थे। हम वी यूज़ टू क्रिएट अ फिल्म ऑफ लाइट ऑफ हैविंग 30,000 लाइक हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, तो उससे जो है ना वो फ्लिकर मिसमैच रिड्यूस हो जाता था। तो वी यूज़ टू प्रोवाइड के व्हाट शुड बी द सीटिंग अरेंजमेंट, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ ए मॉनिटर, व्हाट शुड बी द हैंड साइड। देयर इज़ अनदर सिंड्रोम कॉल्ड एज कार्पल टनल सिंड्रोम, तो जिससे आपका यू आर अनेबल टू अनबटन और बटन योर शर्ट्स, और आपकी फिंगर्स मूव नहीं हो पाती थी। बट इट वॉज एन एब्सोल्यूट फेल एट दैट टाइम। ये किस ईयर की बात है? ये 99-2000 की बात है। इट वाज लाइक आई थिंक इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम, तो इट वाज टू अर्ली, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, एंड वी गॉट फेल्ड इन दैट। तो देन आई डिसाइडेड लाइक आई शुड गेट अ बिजनेस डिग्री। तो देन आई डिसाइडेड टू अपीयर फॉर कैट एंड ऑल राइट। तो आई हैड 3 मंथ्स, अगस्त में मैंने डिसाइड करा, और दिसंबर में कैट की प्रिपरेशन थे। 3 मंथ्स आई प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड आई डिडंट क्रैक कैट। तो फिर लेकिन मेरा IIIT या MT गाज़ियाबाद, नरसिम्हा जी, कुछ एक इंस्टीट्यूट्स में हुआ था, तो आई प्रेफर टू टेक इट लाइक IIIT गवालियर, विच वॉज स्टार्टेड बाई MHRD ऑन द सेम गाइडलाइंस ऑफ IITs एंड IIMs। तो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ कोर्स था, एंड there I like learn a lot of things. From there like I started I should go back, और वहाँ पर बिजनेस स्टडीज़ करके I should come back. तो शायद वो कीड़ा होता है आई थिंक, क्योंकि आई कम्स फ्रॉम ए एकेडमिक बैकग्राउंड। माय फादर वाज अ प्रोफेसर, माय आंट वाज अ प्रिंसिपल, और मेरे घर में 2 PhDs एंड ऑल राइट। फिर MBA के बाद जो है देन देयर वाज लाइक .com बस्ट इन 2002। तो फिर उसके बाद जॉब्स करी, आई एक्सीडेंटली गॉट इनटू लाइक टैलेंट एक्विजिशन एंड रिक्रूटमेंट। तो 2007 में आई स्टार्टेड अनदर कंपनी। 2008 में अगेन रिसेशन आ गया, तो आई वेंट बैक अगेन टू द जॉब। तो दैट्स हाउ लाइक स्टार्टेड। लेकिन शायद वो कीड़ा था, बार बार आ रहा था। तो वो फाइनली वो 2016 में जो है ना फिर अगेन लाइक आई थॉट लाइक आई शुड लाइक डू समथिंग, और आई आइडेंटिफाइड दिस प्रॉब्लम वेयर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो इस तरीके से जो है ना मेरी जर्नी रही। नाइस। बैक एंड बैक अगेन एंटरप्रेन्योरशिप ये बताता है कि आपका कीड़ा सही में जगा हुआ था, और एंड आपने उस पर रिलेंटलेसली वर्क किया। तो नाउ आई थिंक कितना 6 ईयर से आप बिजनेस कर रहे हो, राइट? हाँ, 8 years। 2016 आई स्टार्टेड, एंड मैंने 2012 में इस मॉडल पे काम करना शुरू करा था। आई वाज डूइंग डीप रिसर्च ऑन इट राइट, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड ऑल राइट। तो एंड आई ऑलवेज अवॉइड टू डू लाइक थिंग्स विच एवरीबडी इज़ डूइंग, तो डू इट डिफरेंटली। क्या चीज़ अलग, क्या प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका अभी कंपनी क्या करता है, ठीक है? डिटेल में थोड़ा बताइए, और आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है एज एन एंटरप्रेन्योर अभी तक? करंटली जो हम कर रहे हैं राइट, आई वॉज ऑन द रिसीविंग एंड बीइंग इनटू HR, टैलेंट एक्विजिशन एंड हायरिंग। तो देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ लाइक टेकिंग केयर ऑफ दिस बेंच रिसोर्सेज। बेंच रिसोर्स इज अ लॉस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं था। मतलब वी कैन मेक द प्रोसेस फास्टर, और फिर व्हेन द इंडस्ट्री गोज डाउन तो उसमें ले ऑफ्स जो होते थे, तो क्योंकि वो बेंच रिसोर्सेज होते हैं जो यूजुअली दे गेट लेड ऑफ। लोगों को लगता है कि किसी को जॉब पे ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन एक्चुअली जो यूजुअली सर्विसेज कंपनीज में से निकालते हैं, बिकॉज ऑनबोर्डिंग टाइम टेक्स 2 to 4 months। वेन एवर एनी न्यू प्रोजेक्ट कम्स इन एनी IT सर्विसेज कंपनीज, तो उसमें वो बेंच रिसोर्सेज को डिप्लॉय करते हैं। अगर रिसोर्स नहीं है तो दे हैव टू हायर फ्रॉम द मार्केट, एंड इट टेक्स 2 to 4 months, बिकॉज 1 month गोज इन एवेल्युएशन, 1 month नोटिस पीरियड और 2 months नोटिस पीरियड। तो अगर किसी के पास रिसोर्स, कंपनी के पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो उसको जो है ना मार्केट से हायर करना पड़ेगा, लेकिन क्लाइंट इतना वेट नहीं करेगा। तो दैट्स हाउ इट बिकम्स ए नेसेसिटी फॉर एनी IT सर्विस कंपनी टू कीप 5 to 10% ऑफ रिसोर्सेज ऑन बेंच, वेदर इज TCS, विप्रो, IBM, कोई भी कंपनी होगी, और इवन द स्मॉलेस्ट कंपनी, उसको रखना पड़ता है। अब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, एंड आई यूज़ टू हैव लाइक कि हमारे बेंच पे है, अब इन बंदों को लगाना है, इनको कैसे बेंच पे नहीं रख सकते। तो देयर वाज ऑलवेज, क्योंकि वी आर पेइंग सैलरी फॉर नो वर्क राइट। तो अराउंड 5 to 10% और अप टू 20% समटाइम्स गोज। तो वो उसका सॉल्यूशन है। तो दैट्स हाउ डिसाइड व्हाट विल बी द सॉल्यूशन फॉर इट। तो हायरिंग आप इतना कितना भी फास्टर कर दें, उसकी एक लिमिटेशन है, कितनी बड़ी टीम कर लें। तो उसका एक जो सॉल्यूशन हमने निकाला, कोलैबोरेशन इज़ द ओनली वे राइट, वेयर लाइक कंपनीज कैन कम टुगेदर एंड शेयर देयर रिसोर्सेज। मेरे पास खाली रिसोर्सेज है, आई विल गिव इट टू यू। इफ़ यू हैव ए रिसोर्स, यू विल गिव इट टू मी।
तो हम जब कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करेंगे तब हम जो है ना शायद वो उसको मिनिमाइज़ कर सकेंगे. सो दैट्स हाउ लाइक वी स्टार्टेड क्रिएटिंग ए नेटवर्क कम्युनिटी ऑफ IT कंपनीज. So now we have reached to like around 15,000 IT company community, and we have a vision of creating a network community of around 1 million company globally, where like companies can share their resources with each other and reduce this like bench resource loss for any organization and revenue leakage because of delay in hiring. क्योंकि revenue leakage, delay in hiring ऐसे होता है कि it's not been calculated in any books. आज मुझे बंदा चाहिए था 2 महीने बाद मैं अगर डिप्लॉय कर रहा हूँ तो 2 महीने की जो बिलिंग लॉस है इट्स नॉट बीन कैलकुलेटेड. तो वो भी एक लॉस है ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट बीन कैलकुलेटेड. तो हम इसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. दैट्स हाउ लाइक सो दैट कंपनी कैन हैव ए लाइक बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन. ये जो सर्विस कंपनी ज़्यादा यही यूज़ करते राइट IT, मतलब आप अगर मुझे बताओ परसेंटेज वाइज कि कितना परसेंट IT सर्विस कंपनी ये यूज़ कर रहे हैं और कितना परसेंट प्रोडक्ट कंपनी या कोई और इंडस्ट्री के कंपनीज यूज़ कर रहे हैं बेंच हायरिंग. Any company who's even in the manufacturing domain also, right? They are having an IT division also, right? So they also require resources, and sometimes they don't want to hire on full-time basis. तो कोई भी IT कंपनी हो, कोई बैंक्स के लिए काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं. तो वो भी हमारे जो हमसे कंपनी, बिकॉज दे आर लाइक इधर गो लाइक गिव एन RFPs एंड लाइक वर्क विद लाइक कंपनीज, डिफरेंट IT सर्विसेज कंपनीज. लेकिन जब उनको एक जगह पूल मिलता है तो दे हैव ए चॉइस लाइक, तो दे कैन गेट इट एट ए बेटर रेट ऑल्सो. तो इस तरीके से दे कैन गेट लाइक रिसोर्सेज, इवन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज इन जस्ट मैटर ऑफ फ्यू डेज ऑल्सो, बिकॉज दैट इज़ ए नेटवर्क, पूल ऑफ नेटवर्क. अगर आप इवन इन्फोसिस या TCS के पास जाएंगे, 1,000 लोग एक साथ डिप्लॉय करना आसान नहीं होगा, राइट? उनके पास भी शायद उस पर्टिकुलर स्किल्स पे. लेकिन व्हेन यू हैव ए नेटवर्क, तो आप हो सकता है किसी के पास 10 हो, किसी के पास 20 हो, किसी के पास 50 हो, आप उसमें आप यू जस्ट रन ए कैंपेन एंड देन यू कैन गेट लाइक हायर द रिसोर्सेज इन जस्ट ए मैटर ऑफ डेज और आवर्स. काफ़ी इनोवेटिव आपने आइडिया चुना और काफ़ी इनोवेटिव आपकी कंपनी है. क्योंकि इस सेक्टर में बहुत कम कंपनीज़ हैं जो इस बेंच हायरिंग पे काम कर रहे हैं, राइट? आप इनोवेशन के लिए क्या करते हो? आपका क्रिएटिविटी, इनोवेशन आप अपने कंपनी में, अपने ओवरऑल जर्नी में आप क्या समझते हो, इनोवेशन का क्या रोल है? I think I usually say this statement to my team also. We need to be reactive, okay, with the market. तो उसके लिए ज़रूरी है you need to be updated, right? For that, like you need to read a lot. You have to like talk to a lot of people, like industry experts. तो आप जितने अपने से बेटर लोगों से मिलोगे उतना ही आप जानोगे कि कैसे जो है ना हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, एंड वॉट एवर वी आर थिंकिंग एंड वॉट एवर वी आर डूइंग इज़ राइट और रॉन्ग, राइट? तो आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, राइट? व्हाट आर द रिसर्च इज गोइंग ऑन, डिफरेंट रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं. अगर आपको ये नहीं पता चलेगा तो आप यू मे थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, लेकिन कल को वो ऑब्सोलीट हो जाएगी. क्योंकि मार्केट में जो है ना द लाइफ साइकिल ऑफ एनी प्रोडक्ट लाइक इट्स लाइक ना गेटिंग शॉर्टन. तो कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं हो सकता 20 साल तक रिलेवेंट रहे, राइट? वो पहले 10 साल तक रह सकता है, 5 साल तक, और हो सकता है 2 साल तक. बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आए चले गए, चाहे बायजूस की बात करें या स्नैपडील की बात करें. तो वो रिलेवेंट रहना और अपग्रेडेड रहना और आपको एग्जीक्यूशन कैसे करना है, वो दैट मैटर्स अ लॉट. आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं? अगर उनको एंटरप्रेन्योरशिप लेना है, लेट्स से इसी इंडस्ट्री में लेना है, तो क्या ब्लूप्रिंट है जो वो फॉलो कर सकते हैं? मेरा एक सजेशन यही रहेगा कि लाइक आई थिंक लाइक यू शुड नॉट फॉलो लाइक व्हाट अदर्स आर डूइंग, और जो उनके लिए सक्सेसफुल है तो ज़रूरी है आपके लिए भी सक्सेसफुल है. इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो है ना ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्किल्स, लाइक व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, आप करना क्या चाहते हो. आपका अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वो किस तरीके का, किस इंडस्ट्री में है. तो अगर डेवलपमेंट आता है तो डेवलपमेंट में पहले उसमें ट्राई करो. अगर मुझे टैलेंट एक्विजिशन आता था तो मैंने उसमें ट्राई करा. नाउ वी आर डूइंग डिफरेंट अदर थिंग्स ऑल्सो. लेकिन फर्स्ट थिंग व्हेन यू आर डूइंग यू शुड डू वट एवर यू नो द बेस्ट, राइट? जिसमें आपको कोई हरा ना सके, जिसमें आपको कोई जो है ना बीना, यू हैव ए रिलेवेंट नॉलेज एंड ऑल, राइट? तो वो चीज़ पहले करें और अपना आपको अपडेटेड रखें, रिसर्च करें, मार्केट एग्जीक्यूशन कैसे, एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक फॉर सक्सेस ऑफ एनी स्टार्टअप. मैं भी मानता हूँ कि
हमें उसी सेक्टर में काम करना चाहिए या वही वर्क करना चाहिए जो हमारे लिए प्ले लगे, फन लगे। बिकॉज अगर आप वो वर्क करना पसंद करते हो, आप बिना सैलरी के उस पर काम कर सकते हो, तो आप उस पर बहुत सैलरी कमा सकते हो। ट्रू, वेरी ट्रू। मैं अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज़ वन थिंग विच यू एंजॉय द मोस्ट, और आप वो करते हुए थकोगे नहीं। पता तो होना चाहिए कि मुझे क्या करने में मज़ा आता है। मुझे जैसे काम करने में आता है, आई गॉट इन टू टैलेंट एक्विजिशन एक्सीडेंटली, लाइक, बट आई एम सो पैशनेट अबाउट इट, लाइक मुझे मज़ा आता है, तो आई वॉन्ट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन टू इट। तो मुझे लोगों से बात करना, वो सब चीज़ में जो एक वो होता है ना, इंटरेस्ट जब आने लगता है ना, तब उसमें मज़ा आता है। देन यू कैन क्रिएट इनोवेशन इन इट। जॉब शुड नॉट बी लाइक क्लीशे वे में अगर हम बोलते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब शुड बी लाइक दिस इज व्हाट आई लव एंड आई कैन डू एवरी डे, राइट? तो हम ऑफिस में भी कोशिश करते हैं कि यू शुड हैव लाइक एनवायरनमेंट वेयर लाइक एवरीबडी कैन हैव फन, एंजॉय। दैट्स द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एवरी कंपनी, आई बिलीव। एज अ सीईओ, मैं आई एम श्योर दैट आपकी लाइफ में भी, बिकॉज आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में वर्क करते हो, तो काफ़ी हेक्टिक भी हो जाता होगा, वेदर इट इज़ यू लव दैट और नॉट। तो आप अपने पर्सनल लाइफ और यू नो दिस एंटरप्रेन्योरशिप एज अ सीईओ, आप इसको कैसे बैलेंस करते हो? आई थिंक आई यूजुअली बिलीव कि ज़रूरी नहीं है टू मेक ए वर्क लाइफ बैलेंस कि आप 6 बजे घर पहुंच जाओ और आप जो है ना जल्दी आ जाओ ऑफिस से, और सैटरडे संडे सिर्फ और सिर्फ फैमिली के साथ ही करो। एट टाइम्स इट्स नीडेड in work also. I believe you need to prioritize the things, right? तो प्रायोरिटाइज करने के लिए व्हेन इज़ योर फैमिली इज़ योर प्रायोरिटी, व्हेन इज़ योर लाइक समबडी इज़ इल, आपकी फैमिली में आपकी मदर बीमार है, आप ऑफिस में हो, तो दैट्स नॉट लाइक वर्क लाइफ बैलेंस। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी फर्स्ट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। तो अगर आप वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो, देन यू विल हैव ए वर्क लाइफ बैलेंस इशू रहेगा। मेरे साथ एक ऐसी इंसिडेंस हुआ था कि मेरी डॉटर ने, मेरा स्कूल में थी एंड शी वॉज इन 4th स्टैंडर्ड, लाइक 8-9 ईयर ओल्ड। तो स्कूल से फ़ोन आया कि अभी आप ले जाइए, उसकी तबीयत ख़राब है एंड ऑल, राइट। तो आई इमीडिएटली आई हैड सम अर्जेंट मीटिंग्स एंड ऑल, कैंसल्ड एवरीथिंग, देन आई वेंट टू देयर और पिक माई डॉटर एंड ऑल। तो मैं घर गया और मुझे रियलाइज़ हुआ उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, कुछ ऐसा था नहीं, डॉक्टर के पास ले गया। देन मुझे लगा, तो मैंने उससे फिर कुछ टाइम बाद पूछा कि तो बोलती है, मैं टेस्ट कर रही थी कि आप में हाउ इम्पोर्टेंट आई एम कि वो जो है ना कि आप आओगे या नहीं आओगे। अगर मैं उस दिन फेल हो जाता है ना, तो मुझे खुद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो आई प्रायोरिटाइज दैट थिंग। जैसे मेरी वाइफ से यूजुअली डे टाइम में बात नहीं होती, राइट, बिकॉज वी बोथ आर वेरी प्रोफेशनल, तो वी डोंट टॉक, राइट। कॉल आया है मीन्स कुछ काम है, तो यूजुअली से कि हाँ बताओ क्या है। तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल बिटवीन बोथ ऑफ अस। सो दैट्स हाउ लाइक वी मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन लाइक लाइफ एंड लाइक प्रोफेशनल लाइफ, एंड माय फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, स्पेशली माय वाइफ, लाइक। तो I'm able to manage it somehow, right? And better, like they can tell me better. I will ask them today. नहीं, बिल्कुल प्रायोरिटी फैमिली का आपको रखना ही पड़ता है, और बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, पर्सनल लाइफ, वाइफ, फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। कब क्या, कभी कोई आपका बीमार है, आप ऑफिस में आप कर रहे हो, मेरी अर्जेंट मीटिंग है, सो दैट्स नॉट लाइक वर्क लाइफ बैलेंस। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है, इस वक्त सब चीज़ छोड़नी है। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए, तो जिसमें कि मैंने आई प्रेफर्ड लाइक व्हाट आई डिसाइडेड कि ये इंपॉर्टेंट है इस वक्त, आई हैव टू रश। आप जब बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे, ये जो भी आप कंपनी onbenchmark.com चला रहे हो, आप जब बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए स्टार्ट करने में अपनी कंपनी को? देखिए, फर्स्ट चैलेंज, आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, तो मुझे डेवलपमेंट के लिए टीम बिल्ड करनी थी। और बिकॉज आई वॉज लाइक हैविंग गुड रिलेशन विद लॉट ऑफ गुड पीपल, तो मेरी गुडविल ऐसी थी, तो मुझे आई हैड गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई लाइक फ्रेंड्स एंड लाइक इवन दोज हु आर नॉट फ्रेंड्स डायरेक्टली, उन्होंने भी हेल्प करी। तो मेरी सबसे पहले हेल्प, मतलब आई दिस convey this idea of like developing this platform with one of my friend's friend. तो and he was a developer, तो his name was Nadeem। तो उसके साथ एक और उसका जूनियर था नकुल, नदीम एंड नकुल, दे एक्चुअली केम एंड लाइक दे सेड लाइक वी विल डू दिस। तो उन्होंने डेवलप करा। तो वो जो एक फर्स्ट चैलेंज होता है ना कि आपको वो राइट लोग जो टीम मिल जाती है कि टू ट्रस्ट, like somebody who can trust you or your idea or what you want to do, and they will trust you not just on your idea but as a person also, right? तो उन्होंने बिना पैसे लिए मेरे लिए बनाया,
एंड दे आर वेबसाइट जो आपका जो हमारा पोर्टल था एक MVP जो बनाया इनिशियली, तो उसके बेसिस पे मैंने जॉब से रिज़ाइन करा। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने स्टार्ट करा, और उसकी भी एक स्टोरी है। व्हेन आई स्टार्टेड लाइक आई हैड परफेक्ट प्लानिंग कि माय वाइफ वाज वर्किंग एंड आई विल स्टार्ट दिस, और मैं लॉन्च करूँगा इस मंथ में, आई विल रिज़ाइन ऑन दिस डेट। माय सन वाज बोर्न लाइक इन नवंबर, तो मैंने नवंबर में रिज़ाइन करा। आई हैड टू सर्व 3 months नोटिस पीरियड, एंड वी डिसाइडेड माय वाइफ विल कंटिन्यू विद द जॉब सो दैट्स टू रन द एक्सपेंसेस एंड ऑल। तो फिर उसके बाद जो है ऐसा हुआ कि माय वाइफ लॉस द जॉब, ओके, और उनकी कंपनी को किसी ब्रांड फैक्ट्री इन फ्यूचर ग्रुप ने एक्वायर कर लिया, और उन्होंने कंप्लीट, शी वाज देयर लाइक विद दैट कंपनी फॉर 10 years। और वो जो है ना डिपार्टमेंट, शी वाज कैटेगरी हेड, शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, तो वो डिपार्टमेंट ही डिसमेंटल कर दिया। अब उस पीरियड में लाइक आई वाज सर्विंग नोटिस पीरियड, and by the time I completed my notice period, me and my wife both were jobless, and my son was 3-4 months old. She can't do the job, she was on a maternity leave. तो वो जो आप कुछ भी प्लानिंग करें, राइट, मैटरनिटी लीव में थी, इसके वजह से तो ये इम्पैक्ट नहीं है। नहीं, वो इस वजह से नहीं आया, तो वो ज्वाइन कर लिया था, वापस ज्वाइन कर लिया था आफ्टर 3 months। वंस शी ज्वाइन देन लाइक इट हैज़ हैपन, लेकिन मैं जब तक नोटिस पीरियड सर्व करा तब तक वी बोथ फॉर जॉबलेस। तो ऊपर वाले का कुछ और प्लान होता है, इवन इफ़ यू विल डू परफेक्ट प्लानिंग, तो चैलेंजेस तो आते हैं ऑफ कोर्स, बट यू हैव टू ओवरकम। इफ़ यू हैव डिसाइडेड, यू हैव थॉट ऑफ समथिंग, एंड इफ़ यू हैव ए कन्विक्शन, so you should go ahead. So I did that, and I got a support from my wife also for that, so that's why I was able to do that. उनके लिए तो ये सडन चेंज आया और आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा, बट आप हमारे ऑडियंस के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग मेजर करियर चेंज कर रहे हैं, ट्रांजिशन में हैं या करना चाहते हैं, तो आपका क्या एडवाइस होगा? I think first of all they will judge their skills कि वो करना क्या चाहते हैं, not because I want to do a business, तो just for the sake of doing business they will come into as an entrepreneur। कुछ अगर इनोवेटिव है और उन्होंने कुछ स्टडी कर रखी है, I'll give an example of one of my friend कि वो कई बार आए कि मैं यार सैयद कुछ करना चाहता हूँ, और ये वो है, मैं चाय को यहाँ पर सप्लाई करूँ और मैं कार वॉशिंग शुरू करूँ, एंड डिफरेंट वियर्ड काइंड ऑफ लाइक बिजनेस मॉडल, एंड ही यूज्ड टू कम इन, एंड वन डे ही केम टू माई होम, एंड ही साइड 1-1.5 घंटे बैठे। मैंने उससे कहा कि भाई मुझे लगता है तुम्हारे पास जो है ना कुछ 40-50 लाख रुपए जमा हो गए हैं, अब तुम उसे फूकना चाह रहे हो। तो ही साइड लाइक ये बात तो सही है, मेरे पास पैसे जमा है, अब मैं जो है ना कुछ करना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो भी डजेंट मीन लाइक इफ़ यू मतलब यू विल इन्वेस्ट एनीवेयर, लाइक डू द मार्केट रिसर्च। आप देखो आपकी स्किल क्या है, आप करना क्या चाहते हो, पैशन क्या है, मार्केट स्टडी करो, उसी के बाद जो है ना फिर प्लान करो कि करियर स्विच करना है, दैट्स द राइट मूव और द राइट टाइम, इंडस्ट्री टाइम, नॉट ओनली मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर के रिसेशन में है या किस टाइम में है इंडस्ट्री, तो आप उस वक्त भी शुरू कर रहे हो, तो क्या किस बिजनेस मॉडल पे काम करना चाहते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सेक ऑफ लाइक डूइंग बिजनेस, यू शुड नॉट लाइक लीव द जॉब एंड स्टार्ट डूइंग इट, एंड मेक ए राइट टीम। आप लोगों से मिलो, लोगों से राइट टीम बनाने की कोशिश करो इवन बिफोर स्टार्टिंग एनी वेंचर, क्योंकि आप जब 2 माइंड्स मिलते हैं तो ऑफ कोर्स लाइक यू विल गेट बेटर आइडियाज़, लाइक यू पीपल कंट्राडिक्ट विद यू, देन दैट्स हाउ लाइक यू कैन इवॉल्व। और जो कैंडिडेट्स जो ऑडियंस में हमारी जनता जो जॉब ढूंढ रही है, ठीक है, जॉब सर्च पे है, राइट, तो सबसे बड़ा आपकी तरफ से मैं जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ा मिस्टेक वो क्या करते हैं जॉब सर्च के टाइम पे ड्यूरिंग जॉब इंटरव्यूज? सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो होता है व्हेन दे आर सेंडिंग देयर रिज्यूमे टू एनी HR पर्सन, राइट, एंड उसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, दैट इज़ द मोस्ट इररिलेवेंट सब्जेक्ट आई हैव नोटिस। मेरे पास दिन में 50 फीमेल्स आते होंगे और ख़ाली सब्जेक्ट लाइन होगी CV, रिज्यूमे, बायोडेटा, मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है, राइट, तो उसको वो बहुत कैजुअली लेते हैं। वाई शुड आई ओपन द रिज्यूमे, राइट, इफ़ यू विल राइट समथिंग लाइक कि जावा डेवलपर 4 years of experience for नोएडा, राइट, तो आई नो दैट लाइक व्हाट्स इनसाइड,
तो मेरे इंटरेस्ट का होगा, मैं ओपन करूँगा। तो आपका फर्स्ट CV देखा, मैं देखता ही नहीं हूँ। और कोई भी HR पर्सन नहीं है, दिन में 50 रिज्यूमे आएंगे, आप उसमें से सब नहीं देंगे। लेकिन अगर आप रिलेवेंट सब्जेक्ट लाइन डालेंगे और आप एक अपनी उसमें कवर बॉडी में, उसमें इवन अगर आप व्हाट्सअप से भी शेयर कर रहे हैं तो उसमें एक शॉर्ट एक्चुअली समरी होनी चाहिए। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। तो वो उसको इग्नोर करते हैं और इसी वजह से कई बार सोचते हैं। और नौकरी में भी, इवन नौकरी में सर्च में, पीपल थिंक कि नौकरी में रिज्यूमे अपडेट कर दिया है मैंने 6 महीने पहले, लेकिन मेरे पास कॉल नहीं आ रही। आपकी नहीं आएगी क्योंकि आपने अपडेट नहीं करा है। आपको जो है ना उसे डेली बेसिस पे एक्टिव करना होगा, आपको एडिट करके सेव करना होगा। क्योंकि रिक्रूटर जो होता है ना, फर्स्ट फ्यू डेज़ के जो फर्स्ट फ्यू पेजेस देखता है, उसको 10 रिज्यूमे वहाँ से मिल गए, वो आपके 6 महीने के बाद आपके 10,000 लोग और आए। अगर हम एग्जाम्पल जावा डेवलपर के, तो मान ली 500 लोगों ने करा, उसको 100 लोगों में से काम के मिल गए उसको रिज्यूमे। तो वाई somebody विल कॉल यू ऑल्सो एंड रीच टू द लाइक 20th 30th पेज, राइट? तो फर्स्ट 2 पेजेस में अगर नहीं आ रहा है आपका रिज्यूमे, तो बिकॉज यू हैव टू राइट रेलिवेंट कीवर्ड्स ऑल्सो, सो दैट लाइक यू विल बी ऑन द लाइक एनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नौकरी बट एनी जॉब पोर्टल, इफ़ यू आर लाइक अपडेटिंग योर रिज्यूम, तो आपको यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग कि कितना आपका नोटिस पीरियड है, एवरीथिंग यू हैव टू। तो ये चीज़ें अगर करें, आई एम बिलीव लाइक पीपल विल कैन ईजिली गेट द जॉब इफ़ दे हैव अ राइट स्किल्स। करेक्ट करेक्ट। हम लोग भी जॉब पोर्टल रन करते हैं, instahire.com। सो राइट, हमारे या इज द मोस्ट फेमस वन। हाँ, तो हमारे में भी आपको कैंडिडेट्स को जो वो डिटेल्स डालते हैं, अगर वो स्किल्स, वो जॉब फंक्शंस, अपने किस सेक्टर में वर्क किया, अगर वो स्पेसिफाई करे, हमारा तो मैचिंग सिस्टम है, AI मैचिंग एग्जैक्टली, है, हाँ, तो yeah. वो बहुत मैटर करता है। रैदर देन जस्ट हम तो पूछते ही नहीं कि सिर्फ रिज्यूमे अटैच कर दो, वी वांट मोर डिटेल्स सो दैट एक्चुअली वी कैन फाइंड देम बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम द मार्केट। तो ये अपडेट करना रिज्यूमे, करेक्ट स्किल्स पकड़ डालना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और किसी भी जॉब पोर्टल के लिए। यस। और आपका इंस्टा है तो आई थिंक इज AI बेस्ड टूल, तो उसमें आप रिलेवेंट डेटा अगर आपने नहीं हुआ तो हाउ इट विल लाइक इंटेलिजेंटली प्रोवाइड यू द लाइक राइट मैच टू योर जॉब्स। तो वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी जॉब सीकर अपना रिज्यूमे स्टैंड आउट कैसे करे? आई थिंक देखो, रिज्यूमे जो है ना, आई बिलीव मोर और लेस कॉपीड बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें आपको सिर्फ रिज्यूमे की बात करें तो आप यू शुड मेक इट लाइक प्लेन एंड सिंपल, ओके, इन ए बुलेट फॉर्म, ओके, एंड नॉट लाइक जैजी रिज्यूमे वेयर लाइक मैं इधर देखूं या इधर देखूं। आपको सिर्फ बुलेट फॉर्म्स में आप मेंशन करिए, इवन द समरी पार्ट ऑल्सो। आप जो है ना जितना रिलेवेंट रहेंगे, आपको लॉन्ग स्टेटमेंट्स, टेक्स्ट ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। और उसके लिए जो है ना आपको जो है ना वही चीज़ें डालें सिर्फ जो आपको आती हैं, राइट? बिकॉज इफ़ यू विल कॉपी एंड पेस्ट इट फ्रॉम समवेयर, अदर पर्सन माइट हैव डन लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, लेकिन आपने लिख दी हैं, आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे क्योंकि बिकॉज यू हैव रिटन एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर, तो वो आपका वो हो जाएगा। तो रिज्यूमे को बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज रखें। और वेन एवर यू आर सेंडिंग विद टू एनीबडी और HR पर्सन, तो उसमें सब्जेक्ट लाइन को भी, एज आई मेंशन अर्लियर ऑल्सो, कि उसको बहुत रेलिवेंट रखें। समरी होना चाहिए। समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना जॉब कैसे जो है ना, एक बंदा जो है ना कोई अगर सर्च कर रहा है उसको पूरा रिज्यूमे, मतलब नोबडी हैज़ टाइम, राइट? तो उसको जो है ना एक जस्ट गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ इट एंड अंडरस्टैंड के द व्हाट द पर्सन इज हैज़ डन। जनरली भी 5 to 10 सेकेंड्स रिज्यूमे पे देते हैं लोग। अगर बुलेट पॉइंट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, समरी, ये सब अगर क्लियर और कंसाइज वे में लिखा है तो इट मेक्स यू स्टैंड आउट, राइट? और वो करना एक्चुअली रिज्यूमे में, आपको अगर स्टैंड आउट करना है तो वो 10 सेकेंड का जो कोई भी HR, कोई भी रिक्रूटर अगर देखने वाला है, इवन हायरिंग मैनेजर, अगर उसमें वो चीज़ स्टैंड आउट होती है, आपका एक्सपीरियंस क्लियरली दिखना चाहिए कितना है, राइट? समरी होना चाहिए कि आपने ओवरऑल किया क्या है, राइट? और आपका एक्सपीरियंस में नॉट ओनली कि आपने इस किसी कंपनी में काम किया है, बट उस कंपनी का एक बेसिक ब्रीफ होना चाहिए कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ली और अचीवमेंट क्या किया हुआ। क्या आप जॉब सर्च के लिए नेटवर्किंग को बेहतर मानते हैं? क्योंकि आज के टाइम में, जैसे मैं बोलूँ, ब्लैक बॉक्स हो गया है, आप रिज्यूमे डालते हो, कोई नहीं चेक करता, ऐसा कैंडिडेट को कई बार लगता है, राइट? और क्योंकि इतने एप्लीकेशंस आते हैं रिक्रूटर के पास, तो एक नेटवर्किंग भी मुझे लगता है कि एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकता है। जो तो आपको क्या लगता है, आप कुछ नेटवर्किंग इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज हमारे कैंडिडेट्स को देना चाहेंगे जो ये सुन रहे हैं?
Yes, I think networking is one of the very important like factor in getting the right job, because we are in a like age of like social media, okay, whether it's LinkedIn or Insta or Facebook and everything. तो उसका एक राइट तरीका व्हाट आई बिलीव के इज़ के जब आप किसी से नेटवर्क करेंगे, अब अगला बंदा आपको क्यों रिस्पॉन्ड करेगा जैसे आप जानते नहीं। एक तो ये हो गया आपके कॉलेज क्लासमेट्स और मतलब कलीग्स एक्स कलीग्स से हो सकते हैं, उनसे तो ऑफ कोर्स लाइक यू हैव टू कीप ए रिलेशनशिप विद देम। लेकिन नए लोगों से कैसे मिलेंगे आप जो नहीं भी इंडस्ट्री में और लोग हैं जिनको आप डायरेक्टली नहीं जानते। तो आप जब भी हेल्प मांगेंगे तो आप किसी से भी हेल्प मांगो, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हेल्प को मना नहीं करता। आप सड़क पे भी चल रहे होगे, आप किसी से बोलोगे मेरी हेल्प कर दोगे तो वो रुकेगा, सुनेगा। आप उससे 10,000 मांग लो तो शायद मना कर दे, लेकिन अगर आप उससे बोलोगे मेरा ये गाड़ी में धक्का लगा दो या मेरा ये कर दो, तो एक ह्यूमन नेचर है, बेसिक नेचर है। किसी से भी आप हेल्प मांगो तो दे लाइक इट एक्चुअली हेल्पिंग। तो आप क्वेश्चंस पूछो कि मुझे जो है ना ये प्रॉब्लम आ रही है, टेक्नोलॉजी की हो या फिर हायरिंग में या सेल्स में भी हो, कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ये और आगे क्या करूँ। जब आप उससे वो पूछेंगे तो वो बताएगा। वाई कोरा एंड ऑल आर वेरी सक्सेसफुल। हर कोई ज्ञान दे रहा है क्यों? क्योंकि लोगों को अच्छा लग रहा है, राइट। तो आप उसको आप इनिशिएट उससे करो हेल्प मांग के, फिर आप जो है ना उसको और रिलेशनशिप बिल्ड हो सकती है। तो ये एक आई थिंक मतलब विच आई हैव अप्लाइड। मैंने बहुत लोगों से हेल्प मांगी और मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी बन गए ऐसे लोग। तो आप मांगो, लोग करते हैं हेल्प, तो आप नेटवर्क कर सकते हो इस तरीके से। ये एक मतलब हिडन सॉल्यूशन मैंने अप्लाई करा है एंड सक्सेसफुल। हाँ, सो सही बात है। नेटवर्किंग में जो आप हेल्प मांगते हो या आप कनेक्ट करते हो, कुछ किस लेवल का हेल्प है, किस डिग्री का हेल्प है। जनरली जैसे आपने बोला ह्यूमन साइकोलॉजी, मैं आपको एक एनेक्डोट देना चाहूँ। मतलब ये बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उन्होंने जो कि यूएस के वन ऑफ द यू नो मेजर फिगर हैं। उन्होंने ये चीज़ अपने डायरी में लिखी थी, नोट्स में लिखी थी, अपने बुक में लिखी है कि आप जब भी किसी से हेल्प लेते हो तो साइकोलॉजिकली सामने वाला आपके साथ में और अगर वो हेल्प देता है तो वो आपसे दोस्ती करना चालू कर देता है। ही कंसिडर्स यू एज अ फ्रेंड। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या करते थे, जो भी उनसे एनोमसिटी रखता था, जो भी उनसे थोड़ी शत्रुता रखता था, ठीक है, तो उसके साथ में वो बहुत छोटी सी हेल्प मांगते थे। जैसे उस ज़माने में बुक रखना और बुक पढ़ना बहुत हाई प्रोफाइल माना जाता था, कि अच्छे लोग पढ़ते थे, एजुकेटेड लोग पढ़ते थे। तो वो अपने शत्रु से जा कर के बोलते थे कि यार मुझे ये वाला बुक आप दे सकते हो, और उन्हें पता था कि वो उसके लिए मना नहीं करेगा। और उसके बाद वो जो इंसान है उसके साथ में उनके साथ में दोस्ती कर लेता था। और तो ये उन्होंने ट्रिक्स बहुत यूज़ किए अपने टाइम पे। तो बिल्कुल नेटवर्किंग में आप हेल्प मांगना, एक बिना हेल्प के भी एक कनेक्ट रखना, एक अंडरस्टैंडिंग रखना कि हाँ वी आर ऑल पार्ट ऑफ ईच अदर ग्रुप, राइट। वो ग्रुप का पार्ट बनना, एक सोशल सोसाइटी का पार्ट बनना, वो चीज़ बहुत हेल्प करता है। एग्जैक्टली मैंने आज मुझे भी ये लर्न करने को मिला, तो आई वॉज डूइंग ऑन माई ओन। मुझे सोचता था मैंने कुछ ट्रिक निकाली है। नहीं, आप वही है, नेटवर्किंग में सबसे इम्पोर्टेंट ये है भी कि आप जो है सो कनेक्ट कीजिए, और अगर छोटा भी आप हेल्प मांगते हो और सामने वाले वो पूरा कर पाता है हाँ तो एग्जैक्टली। आपकी उससे दोस्ती हो जाएगी। हाँ, आप अगर नॉलेज की हेल्प मांगते हो तो आई थिंक एवरीबडी लाइक इट, राइट। आपका कज़न या फिर आपके रिलेटिव्स में भी कोई आपके पास आएगा कि भैया मुझे जो है ना ये करना है, तो यू विल लाइक इट, लाइक आपको अच्छा लगेगा। तो द मोमेंट यू फील लाइक मतलब आई एम वर्थ इट, लाइक मैं कुछ बता सकता हूँ, कोई समझ रहा है, तो ये साइकोलॉजिकल फीलिंग जो आती है कि मैं इस लायक हूँ, तो आई थिंक इट वर्क्स वेल। और तो जब कैंडिडेट्स आपको इंटरव्यू देते हैं आपके कंपनी में, या आपने जब भी किसी का इंटरव्यू, आपका क्या मेजर की स्किल्स देखते हो, आप क्या क्वालिटीज़ देखते हो इंटरव्यू करते टाइम में कैंडिडेट के, जिसको देख करके आप उनको हायर करने के लिए उनकी वो क्वालिटीज़ आपको पसंद आती है जो आप ढूंढते हो एक कैंडिडेट में, रिगार्डलेस ऑफ कि फंक्शनल कॉम्पिटेंसी क्या है, फंक्शनली वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल आप एज अ पर्सन क्वालिटीज़ देखते हो तो क्या देखते हो? First thing which I see is like attitude, like towards like everything, attitudes. Because I strongly believe कि आप किसी को स्किल सिखा सकते हो लेकिन एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकते, राइट। एंड अदर थिंग्स विच आई सी यूजुअली कि हाउ मच द अदर पर्सन नोज अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, राइट। तो मैं यूजुअली पीपल आर शॉक कि मैं जब उनसे पूछता हूँ व्हाट आर योर लाइक 3 वीकनेसेस,
rather than asking strength. तो उसमें 90% लोग अपनी वीकनेसेस नहीं बता पाते. आप सेकंड क्वेश्चन करो उनसे व्हाट आर योर 3 स्ट्रेंथ, तो वो सब बता देंगे. आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम ऑनेस्ट, आई एम कॉन्फिडेंट एंड ऑल, राइट. तो मेरा जो स्ट्रांगली मानना है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो योर वीकनेस देन योर स्ट्रेंथ, बिकॉज स्ट्रेंथ तो इज़ विद यू, राइट. तो यू डोंट नीड टू वर्क ऑन इट. If you don't know your weaknesses, then it's a bigger problem, right? As Henry Ford said, it's good to know like what you can't do or what you can do, right? तो आपको weaknesses ही नहीं पता है और लोग सोचते भी नहीं हैं कि मेरी weaknesses क्या है. एंड पीपल थिंक कि मुझे जो है ना स्ट्रेंथ बनाना, कॉलेजेस में भी असल में ऐसे ही बताया जाता है अपनी स्ट्रेंथ ये बताओ. लेकिन मेरे लिए जो है ना आइडियल पर्सन है हु मे हैव 5 weaknesses एंड मे बी नो स्ट्रेंथ. तो मुझे जो है ना वो बंदा सबसे अच्छा लगेगा क्योंकि उसे अपने बारे में पता है. एंड आई यूजुअली सजेस्ट कि टू योर ऑडियंस आल्सो, स्विच ऑफ द लाइट. आप सोचो कि मेरी वीकनेसेस क्या है, और उसमें सबसे अच्छी वीकनेसेस या तो किसी की मॉम बताती हैं, ओके, या डैड बताते हैं, और गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड भी बहुत अच्छी वीकनेस बताती है ना, और वाइफ तो बता ही देती है. तो आप वहाँ से आप अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो कि क्या है मेरी वीकनेस, उसको एनालाइज करो. देन व्हेन वंस यू नो द वीकनेसेस, देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, राइट. एनी वीकनेसेस, आपके कॉम स्किल्स में वीकनेस है तो दैट मीन्स यू नो दैट अब मुझे काम करना है, मुझे कोर्सेज करना है क्या है, या फिर कोई सर्टन स्किल्स है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो उसके लिए क्या, दे बिकम कॉन्शियस एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. कोई भी आपकी पर्सनैलिटी में किसी भी तरीके की स्किल वाइज वीकनेसेस है तो उसमें ज़रूर जानना ज़रूरी है, इससे पहले कि मतलब आपकी स्ट्रेंथ को जानो, वीकनेसेस को जानो, सो दैट सक्सीड इन लाइफ. नहीं, एब्सोल्युटली ट्रू. अपने वीकनेसेस, और मेरे ख्याल से मैंने जब भी किसी एक्सलेंट पर्सन को, द पर्सन हु हैज़ इंस्पायर्ड मी, और आई हैव सीन कि ओके इसमें कोई बात है, राइट, आई हैव सीन दैट उनको अपने बारे में ज़्यादा पता होता है. उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट बहुत किया होता है, राइट. आज के टाइम में ये बोला भी जाता है कि इट्स वेरी हार्ड टू बी इन अ रूम बाय देमसेल्फ फॉर मोर देन 1 hour ऑल्सो. मतलब जो इस तरह का अटेंशन स्पैन है लोगों का, और जो चीज़ें आज के टेक्नोलॉजी की वजह से आप बोलो हो चुका है, राइट. लेकिन यही है कि लोग अगर अपने आप को सही से जान जाए, राइट, तो दे कैन प्रोबेबली क्रैक अ लॉट ऑफ थिंग्स. एग्जैक्टली, मतलब दे विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर सकता हूँ. अपनी उसी में स्ट्रेंथ भी निकल आती है वीकनेस में, कि उसको जब आप वर्कआउट करते हैं उसको, तो फिर मेरी बहुत सारी वीकनेसेस हैं ना, आई ओपनली एक्सेप्ट इट, राइट. मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है. एंड आई यूजुअली से दिस बिकॉज आई बिलीव व्हेनेवर यू से सम वीकनेसेस, तो आप उसमें फिर और ज़्यादा वो हो जाते हैं कि यू आर ऑक्युपाइड विद इट एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. तो बोलना भी ज़रूरी है, बोल दिया करो, कोई बेइज्जती नहीं होती इसमें. बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए जो कैंडिडेट्स जाते हैं उनको बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, वो क्या चीज़ें सही कर सकते हैं? आई थिंक बिहेवियरल इंटरव्यूज़ में यूजुअली मतलब यू शुड बी नेचुरल, राइट. आपको उसके लिए कुछ प्रिपेयर करने के लिए जो है ना एज सच ज़रूरत नहीं है. बट वन थिंग इज़ व्हेन यू आर लाइक हैविंग एनी कन्वर्सेशन, लाइक स्टार्टिंग फॉर गोइंग फॉर ए इंटरव्यू, यूजुअली बहुत सारे जो जॉब सीकर्स गलती करते हैं, दे डोंट प्रिपेयर, राइट. उनकी स्क्रिप्ट रेडी नहीं होती. इंटरव्यू की जो है ना स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए कि आप क्या बोलेंगे पहले, वो रैंडम नहीं होनी चाहिए. व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, मुझे आज भी मैं एक सांस में मैं मतलब बोल सकता हूँ कि हाउ आई स्टार्टेड, कि मैं बी टेक, मैं MBA, फिर देन आई डिड स्टार्टेड माय करियर विद दिस कंपनी. तो वो उसका भी एक क्रोनोलॉजी होना चाहिए कि आप अपनी एजुकेशन से शुरू करके फर्स्ट जॉब में, फिर देन लाइक आपने जो नेक्स्ट जॉब में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो उसको जब तक आप लिखोगे नहीं और स्क्रिप्ट बनाओगे नहीं और उसको आप याद नहीं करोगे, बार बार नहीं करोगे, अदरवाइज़ क्या लगता है, अरे यार मैं ये बोल देता वहाँ, तो ये वाला ये भूल गया बताना, तो आप भूलेंगे ही भूलेंगे. आज के टाइम में AI बहुत चर्चा में है, राइट. ऑब्वियसली AI ने बहुत सारे जॉब के पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया है. काफ़ी कंपनीज उसको लेवरेज भी कर रही हैं, राइट. सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और AI हैज़ कम इनटू पिक्चर. सो आपका इस बारे में क्या राय है? AI और ये टेक्नोलॉजी एडवांस की वजह से जो जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ में डिफरेंस आया है मार्केट में, आपका इस पे क्या राय है?
See, AI is reality now, and it's a part of like our everyday life now also. और इसमें आई बिलीव कि 75% पीपल हु आर 40 years and above will lose the job, and they are the people like who will get mostly affected with that. और उसका रीज़न ये है कि हमारा एक कल्चरल रीज़न भी है इंडिया में, एवरीबडी वांट्स टू बिकम ए मैनेजर। ओके, तो जो आने वाले टाइम में जो है ना, मैनेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, देर विल बी लाइक नो मैनेजर कंसेप्ट, राइट। अभी रिसेंटली आई केम टू नो लाइक अमेजन में 15% जॉब्स जो है ना वो ले ऑफ हुआ है मिड मैनेजर लेवल पे, and only line managers and the top management are there. Mid level पे जो है ना, and one of my friend also lost the job in that. So this is going to come, and of course like the repetitive job, like even in the HR operations or like the jobs where like not much skills are required, it will be lost, right? So it's going to make a huge impact in the overall job market, right? Only way is you have to adopt AI. अगर आप यू विल बिकम इग्नोरेंट अबाउट इट, देन ऑफ कोर्स यू आर द वन लाइक हु इज़ गोइंग टू लूज द जॉब। तो आप जितना टेक्नोलॉजिकल इंक्लाइंड रहेंगे और रिलेवेंट रहेंगे, वेयर लाइक ए आई कैन नॉट टच लाइक देयर जॉब, ए आई विल कम इन टू एवरी फील्ड, राइट। अर्लियर इट वॉज कंसिडर्ड कि हाँ क्रिएटिव जॉब्स में जो है ना ए आई नहीं आ सकते, या फिर और डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब लाइक मे बी वेब डिज़ाइनिंग एंड ऑल, राइट। तो सबसे पहले एआई ने डिज़ाइनर्स की जॉब्स को ख़तरा पहुंचाया है, और कंटेंट राइटर लाइक चैट जीपीटी एंड ऑल, राइट, तो उनकी जॉब्स को अफेक्ट करा है। तो वो भी अभी इट्स अनसर्टेन लाइक कौन कौन सी जॉब्स जाएंगी, राइट। बट यू हैव टू बी लाइक ऑब्जर्वेंट अबाउट इट, लाइक कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हाउ यू कैन सेव योर जॉब। But it will also create like more jobs, like any other revolution in earlier history also, like चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें या टेक रेवोल्यूशन की, आईटी रेवोल्यूशन की, तो इनिशियली लगता है कि ऑफ कोर्स देयर विल बी ह्यूज डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉब, लेकिन देयर विल बी शिफ्ट इन जॉब ऑल्सो, राइट। सो मोर अपॉर्चुनिटीज़ विल कम, बट इट विल बी ए शिफ्ट इन जॉब्स, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस मेरे को लगता है कि स्पेशली जो लोग ग्रेजुएट होके निकलते हैं, फ्रेशर्स, राइट, उसमें काफ़ी ज़्यादा पिछले हम लोग तो रिसर्च करते रहते हैं, डेटा देखते रहते हैं, तो रिसर्च में भी पता लगा कि अराउंड 40%, 42.3% टू बी एग्जैक्ट इन 2023 डेटा था कि आपका ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं। तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न है, और कैसे हमारी ये ग्रेजुएट्स जो पास आउट हो रहे हैं कॉलेज से, इसमें इतना मतलब 42% या 40% इज़ नॉट अ स्मॉल परसेंटेज, राइट, जो अनएम्प्लॉयड है, राइट, आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन। तो क्या रीज़न है, इसको कैसे सही कर सकते हैं? I think, and I've been talking for a long time about this, कि there is a huge disconnect between industry and the education institutes. एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कुछ और पढ़ाया जाए, इंडस्ट्री की डिमांड्स कुछ और है, राइट। एंड दैट इज़ बीन गवर्न बाई AICTE, UGC। तो वो चेंज इन कोर्स जो है ना एज पर द मार्केट वो नहीं हो रहा है, राइट। टू टेक एन एग्जाम्पल, कोई भी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट या फिर MCA ग्रेजुएट, दे कैन नॉट बी प्रोडक्टिव अनलेस दे विल गो थ्रू ए 5-6 months ट्रेनिंग, 3 to 6 months ट्रेनिंग, राइट। तो ऐसा क्यों है? जब तो 3 साल का कोर्स करके आ रहा है, 4 साल का कोर्स करके आ रहा है, he or she must need to be productive from the very first day। वो स्किल डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है? तो हमारे कोर्स करिकुलम में चेंज जो है ना वो करना बहुत ज़रूरी है। और अब जो चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे और जो कोर्स करिकुलम में चेंजेस होने चाहिए, पहले शायद सालों में होते थे, अब शायद मंथ्स में होना चाहिए। तो तभी हम जो है ना रिलेवेंट रह सकते हैं इंडस्ट्री के, और तभी जॉब एम्प्लॉयमेंट और हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और अभी तो हम सिर्फ ग्रेजुएट्स की मेल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी वुमेन एम्प्लॉयमेंट जो है ना इट्स फार लेसर देन लाइक द मैच्योर इकोनॉमीज़। 50% ऑफ द वर्क फोर्स, राइट, आपकी जो है ना उसमें से अगर इफ़ इट्स लाइक 10 to 15% इज़ एम्प्लॉयबल, मीन्स 30-35-40% जो है ना अगर एम्प्लॉयबल नहीं है, तो वो भी एक जो है ना किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए जो है ना एक, आई थिंक इट्स ए बिग कर्स, क्योंकि उसको भी एम्प्लॉय करना, बिकॉज व्हेन योर प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी इकोनॉमी विल इंक्रीज वंस लाइक मैन एंड वुमेन बोथ विल स्टार्ट वर्किंग, राइट, क्योंकि आपके पास बाइंग पावर ज़्यादा होगी।
एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली हैज़ हैपेंड इन द वेस्टर्न कंट्रीज. तो हमें वो उस वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जो है ना बहुत काम करना पड़ेगा. और हमें अपने अपने एजुकेशनल जो करिकुलम को जो है ना उसको भी बहुत सुधार करना पड़ेगा. तभी हम जो है ना इसको रिड्यूस कर पाएंगे टू बी एट पार विद द वर्ल्ड स्टैंडर्ड. करेक्ट. एक्चुअली यही बात हुई है कि वो जो स्किल्स है जो चाहिए, बिकॉज अगर मैं डेटा पे आपको बात करूँ तो अराउंड 114 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है. और इतने जॉब्स क्रिएट हुए हैं वो स्टार्टअप इकोसिस्टम से सबसे ज़्यादा हुए हैं पिछले कुछ सालों में, राइट. लेकिन जो स्टार्टअप को या किसी भी कंपनी को चाहिए वो स्किल्ड लेबर चाहिए, जो भी वो. और वहाँ पे अगर गैप रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी के वजह से काफ़ी सारा स्ट्रेस आता है मार्केट में. कैंडिडेट्स के उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है अपने कॉलेजेस में ट्यूशन फीस में एंड ऑल, वो वहाँ पे, और फिर आगे उनका फ्यूचर, राइट. तो ये जो गैप है वो आई थिंक कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर से, या फिर अभी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स एडटेक में भी आ रहे हैं जो कि आपको स्किल बना रहे हैं किसी न किसी हद तक. आई थिंक ये दीज आर द थिंग्स वेयर पीपल हैव टू लुक फॉर देमसेल्फ. आई फील सो कि अभी आप सिस्टम पे तो नहीं डिपेंडेंट रह सकते, आपको अपना खुद देखना पड़ेगा कि आप क्या सीखना चाह रहे हो और क्या आप करना चाहते हैं. ट्रू ट्रू. एंड एवरीबडी इज़ नॉट दैट मच अवेयर कि क्या, अगर एडटेक में बहुत सारे कोर्सेज एंड ऑल ऐसे है, लेकिन हर किसी को पता भी नहीं है. वो रीच जो है ना, मार्केट रीच इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट. क्या हमारे स्कूल्स में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है या फिर प्राइमरी स्कूल्स हैं, क्या वहाँ तक वो जो है ना जा रही है. और जो हमारा सबसे पहले इक्विप करना होगा टीचर्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स कैसे कहाँ से सीखेंगे. उनको पहले तो टीचर्स का जो है ना उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो दे शुड बी लाइक अपडेटेड अबाउट दैट. देन ओनली लाइक वी कैन क्रिएट अ रेवोल्यूशन. तभी वो चेंज आप कर सकते. वरना स्टूडेंट्स को कौन बताएगा, उन्हें तो नहीं बताएगा. दे आर लाइक नॉट अवेयर ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड. सो वही अभी रिसेंटली इंडिया ने सरपास किया है चाइना को आईपीओ के मामले में. हम अब इन चाइना से आगे हो गए हैं इन अ ईयर सबसे ज़्यादा आईपीओ करने वाले, ईयर ऑन ईयर. सो एक्चुअली हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडिया बहुत ग्रो हो रहा है. वी आर वेरी प्राउड. नेक्स्ट 10 ईयर्स, नेक्स्ट 20 ईयर्स आर वेरी प्रॉमिसिंग. बट द ओनली इशू विच आई फील इज़ हम अपने कैंडिडेट्स को, हमारे जो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स है उसको अगर हम सुधार पाएँ, किसी हम स्किल्ड लेबर ला पाए. बिकॉज वही चीज़ें जिस भी कंट्री में ये चीज़ ग्रो हुआ है, स्किल्ड लेबर ज़्यादा हुए हैं, तो ओब्वियसली बाकी सारे चीज़ों में उसका सपोर्ट रहा है. तो यहाँ पे हमारे सारे चीज़ पॉजिटिव्स की तरफ जा रहे हैं फॉर इंडिया. Next 20 years is gonna be our year, our country's year, I feel, right. Only thing is कि वो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल बना पाएँ, उनको ड्रिवन बना पाएँ, और वो अगर उस लेवल पे जाकर के वो जॉब एक्वायर कर पाएँ, यानी एम्प्लॉयमेंट कम होगा. I think that will help overall. I think like 65% of our population is 35 years and young, right? तो अगर हमने उसको कैपिटलाइज कर लिया नेक्स्ट 15-20 years में, then we can like be the one of the biggest economy. लेकिन अगर इसको नहीं है, that will be like after 20 years, that can be a burden also, because these become like, if they will be not employable or employed, तो वो इकोनॉमी के लिए एक बर्डन भी हो जाएंगे, क्योंकि दे विल बी इन दैट पर्टिकुलर एज वेयर लाइक दे विल बी डिपेंडेंट ऑन द लाइक गवर्नमेंट सब्सिडीज़ एंड ऑल, राइट. तो आईपीओ की आपने बात करी. आईपीओ से आई थिंक लाइक इट्स ए गुड फिगर एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट. बट आईपीओ से ज़्यादा आई बिलीव कि अगर हम आईपी में चाइना को सरपास कर सकें तो दैट विल बी बेटर. क्योंकि आज भी चाइना में सबसे ज़्यादा आईपी अपने पेटेंट्स को जो है ना सबसे ज़्यादा फाइल होते हैं ग्लोबली इफ़ वी टॉक अबाउट. हम इनोवेशन में वी आर लैकिंग. तो हमें आईपी की तरफ भी फोकस करना चाहिए, सो दैट लाइक मोर इनोवेटिव पेटेंट्स और हम वो फाइल करें और इनोवेशन लाएं. तो दैट कुड बी द बेस लाइक फॉर एंड फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर एनी इकोनॉमी. तो आईपीओ इज़ गुड लाइक, लेकिन कितने सक्सेसफुल रहते हैं, तो दैट्स नॉट द ओनली मेजर ऑफ लाइक सक्सेसफुल इकोनॉमी. सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव. आप सबसे ज़्यादा कौन से जॉब्स देखते हो आपके प्लेटफॉर्म पे जब आप वर्क करते हो जिस पे हायरिंग सबसे ज़्यादा होती है? Currently, like we are hiring a lot of people on like Java particularly, and Python, data science, data engineers, and
and functional, if we talk about say sales and recruitment also, like we hire. So these are the major technologies which we are hiring currently. So we are always in like open for any like new people who can apply for those jobs, and we can definitely like evaluate them. किस एक्सपीरियंस रेंज में जनरली क्या बोलते हैं रहते हैं जिसमें डिमांड रहती है? 0 to 5, 0 to 10, 1 to 5 क्या रहता है? नॉर्मली जो है ना डिमांड रहती है 3 to 6 years पे ज़्यादा डिमांड रहती है, और बट वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लाइक freshers and like with 1 to 2 years experience also, and especially in AI, like we are looking for people like who have some exposure experience on these technologies also, and sometime blockchain also. So I think like if people have experience they can always like apply. सो हम क्या करेंगे ना, इन सारे जावा, .NET, पाइथन, सेल्स, इन तरह के रोल्स के लिए हम अपने ऑडियंस को इनेबल करना चाहेंगे कि किसी भी तरीके से अगर हम उनकी हेल्प कर पाएँ, बिकॉज व्हाट वी वांट ओवरऑल हमारा गोल यही है कि टू मेक इंडिया एम्प्लॉयबल. ओके, सो जितने लोग भी इस वीडियो को देख करके अगर वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं जॉब के लिए, आई विल पुट अ फॉर्म, आई विल पुट अ लिंक, आई विल पुट सम लिंक्स ऑल्सो जिस पे आप देख सकते हो किस तरह के जॉब्स होते हैं. और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो कृपया करके वो फॉर्म पे अप्लाई करें, जॉब अपना डालें, थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखें, और मैं इनके लिंक्स भी डाल दूंगा, डायरेक्टली आप जाके अप्लाई कर सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी पुट इन डिस्क्रिप्शन. And also, I will add like senior people like who are having 10 plus years of experience in architect, DevOps director, or like even CTOs also who are looking for consulting assignments. Like they can also apply through our on benchmark platform. We help them to get consulting assignment on part time and a contractual basis also. तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म में कि दे कैन बी अ पार्ट ऑफ our like platform, and they can get the opportunities of their level of experience. Well, it was very fantastic time with you. Same here, Thank you buddy. so much Same for here. coming. Thank